Hello everyone, I am Dr. Sadhna Singh from Faculty of Chemical Sciences, Sri Ram Sarup Memorial University. Today I will discuss crystal field theory. Okay, after the drawback of valence bond theory, crystal field theory was proposed by the physicist H. Bethe and V. Black in 1930. They assumed that this theory is totally based on the electrostatic attraction between the metal ions and ligands. Ligands may be either negatively charged or neutral molecules. If ligands are negatively charged, then the negative end of the ligand, which have more electron density, directed towards the metal ion. So ligands and metal ions in this theory act as a point charge. First of all, discuss crystal field theory in octahedral complexes. As you know that octahedral complex in metal coordination complexes, in octahedral geometry there are 6 ligands. There are 6 ligands. If we assume this is a cube, okay, and this axis is z-axis, x-axis, and this is y-axis. All the 6 ligands are situated at the center of the face of the cube, and metal is situated at the center. Okay. Then, as you know that there are 5d orbitals. There are 5d orbitals which are dz square, dx square minus y square, dxy, dxz and dyz. All the d orbitals have different shape, या कह लीजिए angular shape. dz square and dxy square, the lobes of dz square and dx square minus y square are situated along the axis. Just see dz square, okay, and the rest 3, dxy, dxz and dyz, lobe of dxz, dyz and dxz are situated in between the 2 axes. Okay, so when the ligand approaches the metal, the degeneration of the 5-fold d orbitals become removed. The interaction of the ligand with the interaction of the electron density of the ligand with the dz square and dx square minus y square orbital is more as compared to the rest of the 3d orbitals, because these 2 orbitals are situated along the axis and ligands are also approach the metals along the axis in octahedral geometry. So the repulsion between the electron density of the ligand and electron density of the situated present in the lobe of these 2 d orbital is maximum in the case of the dz square and dx square. So these 2 orbitals become more in energy. देखिए जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया है, and these 2d orbitals are represented as Eg, dz square and dx square minus y square. The repulsion between the electron density of the metal d orbitals and ligand electron density is lesser in the case of dxy, dxz and dyz, because ligand approaches along the axis and these 3 d orbitals are situated between the 2 axes. So these 3 orbitals become stabilized by the amount 4 dq or 0.4 delta O. In the case of crystal field, in the case of octahedral geometry, the crystal field stabilization energy is represented by delta O. ठीक है, delta O is equal to 10 dq. For example, ये जो total stabilization होगा in the case of the
डी ऑर्बिटल, जो नीचे के तीनों ऑर्बिटल्स हैं दैट इज dxy, dxz एंड dyz, वो 4 dq अमाउंट से क्या हो रहा है, स्टेबिलाईज्ड हो रहे हैं. दीज 3 ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय T2G. T means triplet orbital and here G means zeroid. All the D orbitals are zeroid, means have center of symmetry. ठीक है, दैट्स वाई G हम मेंशन करते हैं ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में, एंड T रिप्रेजेंट द ट्रिपलेट सेट एंड E रिप्रेजेंट द डबलेट सेट एंड G ऑल्सो जीरेड नेचर. ठीक है, तो ये 4DQ, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 into 3 इज इक्वल टू हो गया आपका 12DQ से. अगर ये स्टेबलाइज हो रहा है, इसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो आपके ऊपर के 2 ऑर्बिटल्स हैं dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 6DQ से क्या हो रहा है, डी स्टेबलाइज हो रहे हैं. तो ये 6 into 2 इज इक्वल टू -12. तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, जो ओवरऑल क्या हो गई आपकी 0 वैल्यू आ गई. ठीक है, तो और ये जो हमारी जो इनिशियल पोजीशन है एनर्जी की, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच नहीं किया, ठीक है, जब वेन ऑल दी डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, उस सिचुएशन को, उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में निकालना है कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की वैल्यू क्या होगी फॉर द मेटल विच हैव D2 कॉन्फिगरेशन. ठीक है, इट मीन्स उसके डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो डी ऑर्बिटल्स में होगी वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू वो प्रिंसिपल होगी. तो पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में फिल करेंगे. ठीक है, फिर CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर दीज 2 इलेक्ट्रॉन. इसमें तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 into 4 इज इक्वल टू 8DQ. ठीक है, ऊपर EG में भी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इस माइनस क्या करेंगे हम 8DQ में से 0. तो आपकी ओवरऑल जो CFSE की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी 8DQ फॉर दी T2 कॉन्फ़िगरेशन, या कह लीजिए T2 या D2 भी कह सकते हो, क्योंकि अगर D में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पहले किस ऑर्बिटल्स में जाएंगे, T2G वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे. ठीक है, ऐसे ही हम T2G 3 के लिए निकाल सकते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहां फिल हो जाएगा. उसके केस में CFSE की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 into 4 इज इक्वल टू 12DQ. ठीक, अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो लिगेंड पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू EG ऑर्बिटल्स और become paired in T2G ऑर्बिटल्स. इसके लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रपोज की गई थी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड फील्ड. सो दिस इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कह लीजिए. इसी का जस्ट रिवर्स होता है आपका टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल में हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, इन क्यूब अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एज्यूम करनी है तो हम क्या करेंगे, इन एज यू नो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देयर आर 4 लिगेंड्स. हम अल्टरनेट जो कॉर्नर है उस पे आपको लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे. तो ये जो आपकी सिमेट्री बनेगी वो कैसे बन जाएगी, टेट्राहेड्रल. ठीक है, तो आप देख रहे हो टेट्राहेड्रल में लिगेंड्स जो हैं वो कहां सिचुएटेड है, इन बिटवीन दी एक्सिस, जस्ट रिवर्स ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री के. ऑक्टाहेड्रल में क्या थे, लिगेंड्स अलोंग दी एक्सिस सिचुएटेड थे. तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो वो ऑर्बिटल्स जो इन बिटवीन दी एक्सिस सिचुएटेड हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, क्योंकि उनका लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन उनमें ज्यादा होगा. और जो ऑर्बिटल जो होंगे वो अलोंग द एक्सिस सिचुएटेड हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टेबिलाइज्ड होंगे बाय सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज उसमें जो रिपल्सन होगा इन कंपैरिजन टू दी जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द लिगेंड है वो कम होगा. तो इस केस में क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ठीक है, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz ऑर्बिटल dz स्क्वायर और ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्टेबिलाइज्ड हो जाते हैं.
बाई 0.6 डेल्टा टी वैल्यू से, ठीक है। और जो T2 ऑर्बिटल्स है मीन्स DXY, DXZ एंड DYZ ऑर्बिटल्स वो 0.4 डेल्टा टी अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या हो जाते हैं, डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम G टर्म यूज नहीं करते बिकॉज इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें हम, तो आप ये देख रहे हो कि ये जस्ट रिवर्स केस है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। अब CFSC क्या हो जाएगी इसके केस में, आप जो टोटल होगा इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 2 दिखा दीजिए, 2 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें आपके 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। उसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में किया था। जस्ट फॉर एग्जांपल हमें 2 आपका D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपकी CFSC क्या होगी, CFSC इज इक्वल टू 2 इंटू 0.6 इक्वल टू 1.2 डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो माइनस क्या होगा, 0 होगा। तो ओवरऑल जो आपकी CFSC की वैल्यू हो जाएगी वो 1.2 डेल्टा टी होगी। बट डेल्टा O, द वैल्यू ऑफ CFSC इन द केस ऑफ octahedral ज्योमेट्री इज ग्रेटर देन CFSC मीन्स क्रिस्टोफिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल। डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज आप ये देखिए कि यहाँ लिगेंड्स जो हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, जो लिगेंड्स हैं वो मेटल को अलोंग द एक्सिस डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन है। बट टेट्राहेड्रल में उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, तो जो रिपल्सन होगा वो इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल कम होगा। सेकेंड थिंग, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं वो आपके 6 हैं और टेट्राहेड्रल में 4 हैं, तो जो CFSC की वैल्यू है वो 2/3 अमाउंट 2/3 से ऐसे ही क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और 2/3 फैक्टर भी जो आता है वो आता है आपके इंटरेक्शन से जो फेस टू फेस होता है, तो 2/3 इंटू 2/3 क्या हो जाता है आपका 4/9, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री is equal to 4/9 delta O. Okay, this is all about the crystal field theory of octahedral geometry and tetrahedral geometry. In next time we will discuss about the square parallel geometry. Thank you.